नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज हमारे साथ हैं भव्य तनेजा। भव्य हमारे लाइव इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट मास्टर क्लास के स्टूडेंट थे और हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ है ईवाई में इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एज आर्टिकल असिस्टेंट। तो आइए भव्य से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, उनकी सीए जर्नी के बारे में जानते हैं और उनके पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से लेके सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी रही है वो सारा कुछ जानते हैं हम। वेलकम टू द शो भव्य, हाउ आर यू डूइंग टुडे? All good, ma'am. Thank you for inviting me. जी एब्सोल्युटली, मतलब हाँ, ये तो हमारा ऑनर है दैट वी आर गेटिंग टू टॉक टू भव्य। फिर अगले आगे चल के भव्य इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर हमें बात करने का मौका मिले ना मिले। नहीं नहीं मैम, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सो भव्य हम शुरू से शुरू करते हैं। सीए जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? कैसे सोचा, कैसे कि यार मुझे सीए करना चाहिए? So, ma'am, from beginning, like I was in sixth, seventh class. I loved maths. I love numbers. Also, my big brother, my first cousin, is also a chartered accountant. We live in a joint family, sort of, just one floor above them. So, he had a huge impression on me. Also, he is my inspiration as well. He is a chartered accountant. He cleared in 2016. So CA as a career was in my mind from beginning itself. I had clear goals that I wanted to become a chartered accountant only. So I joined my CA journey after giving my 12th. I actually, our 12th exams didn't happen because of COVID. I I passed out in 2021. So I gave my December 2021 examinations of CA Foundation. I cleared that in my first attempt. Then I started my CA intermediate preparations from after examinations were over only. I हम्म। didn't wait for results. I started in January, अच्छा, मतलब श्योर थे कि भाई ये तो पास ही हो जाएगा? sort of, ma'am, because the papers went really good of CA Foundation. क्या स्कोर था So वैसे, अगर बताना चाहो तो? 304 क्या out बात, of 400. बहुत ही बढ़िया यार, ये तो डिस्टिंक्शन, Yes, राइट? प्रॉपर yes, डिस्टिंक्शन। ma'am. सही है। Yes. So I started my costing classes from January itself. आई वॉज नॉट सीरियस एट दैट टाइम बिकॉज रिजल्ट तो था नहीं। ऑल्सो अभी एग्जाम्स दिए ही थे, तो थोड़ा माइंड में वो रहता है ना कि अभी चिल करते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस चलती रही साथ साथ, बट जैसे ही रिजल्ट आया तो एकदम फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। ऑल्सो आई completed my group 1 classes by I think April. So I started my group 2 classes after that only. I had already decided to give both groups. My brother is also a chartered accountant. He cleared by giving single groups. So all of my family members advised me to think about it first, whether I would like to give both group or single group. But हम्म। it was in my mind from earlier only that I want to give both groups. At हम्म। least I want to complete the classes of both groups. अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आई भी तो वो हमारे पास ऑप्शन तो रहते ही है कि एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं। या। बट फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी मई में, और मैं ये आई कंप्लीटेड माय क्लासेस बाय July of both the groups. So I had left 3 months for the preparation, but the twist was here. So I had my BCom examinations in August. Also अभी क्लासेस खत्म हुई थी। वैसे तो हम्म। एस एस आई एम परसुइंग बीकॉम फ्रॉम SOL। हम्म। तो अभी क्लासेस खत्म हुई थी तो थोड़ा माइंड में भी था कि अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। ऑल्सो साथ साथ बीकॉम के एग्जाम्स भी आ गए। So I lost my touch with studies a little bit in August. Also in September, I have two sisters. One is my real sister and one is my first cousin only. So they both had their marriages in September itself. So so I couldn't even read a single word in September. In August, I was a little bit studying, but in September, I completely lost touch. बट दिमाग में था कि देने हैं ग्रुप दोनों, तो देने ही है। So I started my preparations again from October. I started revising both the groups, and then I gave my examinations. And after हम्म। that, the result November of 22, राइट? yes, ma'am, एंड द रिजल्ट्स आर आउट, सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, कितने नंबर बने? हाँ। 499. ओह 99, नॉट बैड। आई मीन बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है ये भी तो। Yes, ma'am. Because मैं गैप भी आ गया था बीच में 2 months का, तो थोड़ा सा टेंशन हो रही थी, पता नहीं हम्म। क्या होगा क्या होगा। बट जो होना था वही हुआ। कवर अप कर लिया आपने, बट बहुत अच्छी बात है। पर Yes, यूजुअली ma'am. जैसे होता है ना कि परिवार में एक सीए, फैमिली में एक सीए, तो बोलते हैं अरे सीए मत करियो, लाइक मेरा तो खराब हो गया, तू भी मत करियो। ऐसा कुछ नहीं फील हुआ?
नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा, कोई ऐसा हमारे उसमें नहीं है कि सीए इज अ बैड प्रोफेशन और समथिंग एल्स। इफ माय ब्रदर इज आल्सो डूइंग गुड इन हिज लाइफ, ही इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, तो इट्स ऑल गुड। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि ये बिग फोर का ड्रीम कब देखा कि यार बिग फोर में जाना है? चलो एग्जाम्स खत्म हो गए, एग्जाम्स खत्म होने के बाद बच्चा चिल करता है, चीजें एक्सप्लोर करता है या फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है, जिनको थोड़ा डाउट होता है, राइट? यस मैम। तो ये ड्रीम कि यार बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी है, पहले स्ट्राइक कब करा आपको? बिग फोर से आर्टिकलशिप मैम हमेशा से ही मन में था, क्योंकि बिग फोर का नाम ऑब्वियसली सबने ही सुना हुआ है कभी ना कभी इन देयर लाइफ। ऑल्सो बिग फोर की एक अलग ही रेपुटेशन है मार्केट में, और हम्म। लोग कहते हैं बिग फोर में घुसना मुश्किल है, ये वो इंटरव्यूज क्रैक करना मुश्किल है। बट आई थॉट कि अगर करना है, सोच लिया है तो करना ही है। हम्म। Did your cousin do his articleship from one of the big fours? नो नो, ही डिड फ्रॉम मीडियोकर कजन, मीडियोकर फर्म। यस मैम। चलो, तो बताओ फिर कैसे जो है प्रिपरेशन चालू करा, कैसे जो है सोचा कि यार मैं लाइव इंटरव्यू मास्टर क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, कैसे जो है हेल्प मिला उससे, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो मैम इतना ज्यादा स्टडी स्टडी हो गया था, सो आई वेंट फॉर अ ट्रिप ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम विद माय फ्रेंड्स। सो मतलब आई छूटते ही एग्जाम वेंट, खत्म हुआ और ट्रिप। एग्जाम खत्म हुआ और रात को ही बस पकड़ के हम गए मनाली। तो दो मतलब जो प्रेशर था एग्जाम्स का वो तो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो ही गया। स्टडीज का जो भी प्रेशर बिल्डअप हो रखा था वो सारा वहां पे जाके हो गया। ऑल्सो आईटी ओसी करनी होती है, मैंडेटरी होती है, तो आई थॉट कि मैं उसकी भी रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लूंगा। सो आई रजिस्टर्ड फॉर माई आईटी बैच फॉर नवंबर इटसेल्फ, नवंबर में ही था मेरा आईटी, और वो खत्म हुआ 13 दिसंबर को। देन आई हैड माई थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ बीकॉम। तो मेरे को मन तो था कि ओसी मेरा रिजल्ट से पहले ही खत्म हो जाए, बट वो हम्म। हो नहीं पाया क्योंकि मेरे एग्जाम्स बीच में फिर क्लैश करते हैं और छुट्टी मिलती नहीं है ओसी आईटी में। या। ओनली 5 days लीव्स आर अलाउड। सो मेरा अभी ओसी अभी चल रहा है। ऑल्सो थिंकिंग ब्रिज का नाम तो मैं पहले से सुन ही रखा है, क्योंकि मैं ऑडिट में नीरज सर का स्टूडेंट था। ओके। सो और थिंकिंग ब्रिज का तो काफी नाम था, और मेरे दिमाग में था कि मेरे को ऑडिट मास्टर क्लास तो लेनी ही लेनी है। ऑल्सो एट दैट तभी लॉन्च हुई थी आईपीएमबी, इंटरव्यू प्लेसमेंट मास्टर क्लास। तो मेरा मतलब उसको अलग ही एक मन कर गया था, उसे करना ही है। क्यों, हम्म। मैं सोच रहा था जो आपका ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड बैच है रिज्यूमे से रिलेटेड, आई हम्म। थॉट कि मैं पहले वो लूंगा। बट हम्म। फिर तभी वो लॉन्च हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अब लाइव हो रहा है तो लाइव अटेंड करेंगे। सो मैंने वो वाला बैच तब लिया, साथ में मैंने ऑडिट की मास्टर क्लास भी ली थी उस टाइम। हम्म। तो थोड़ा सा फीडबैक शेयर करो, लाइव इंटरव्यू मास्टर क्लास का भी एंड ऑडिट मास्टर क्लास का भी, कैसा लगा आपको, क्या क्या चीजें सीखी आपने? मैम लाइव इंटरव्यू मास्टर क्लास तो मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस आई एवर हैड। इंटर की भी इतनी सारी सारी मेरी ऑनलाइन क्लासेस ही थी, ट्वेल्थ की भी ऑनलाइन क्लासेस ही गई, ट्वेल्थ का तो चलो छोड़ो, वो तो अलग ही एक था। वो तो कोई सीरियसली वैसे भी अटेंड नहीं कर रहा था। इंटर में फिर भी सीरियसली करी, बट आईपीएम में एक अलग ही फन फन सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था। ऑल्सो फन के साथ साथ हम सीख भी काफी कुछ नया रहे थे, क्योंकि रिज्यूमेज बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, ये सब तो मैंडेटरी मतलब सबको ही करना पड़ेगा इफ यू either want to get into आर्टिकलशिप और गेट इनटू अ जॉब। सो मेरे को आर्टिकलशिप के लिए तो जाना ही था। ऑल्सो रिज्यूमे के लिए रिसोर्सेज तो बहुत सारे मार्केट में, बट एक होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं है कहीं पे भी। सो आई थॉट फॉर मेनली रिज्यूमे and also how to approach big firms for via LinkedIn. So I purchased that batch for that reason only, और उसमें 100% सेटिस्फेक्शन है उस बैच से। तो मैं आज तक का मैं हमेशा हमेशा वो मेरा बेस्ट बैच ही रहेगा ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन क्या, ऑफलाइन में भी अगर वो होता तब भी वो बेस्ट ही रहता, क्योंकि इतना कुछ नया सीखने को मिला। रिज्यूमे, जीडी, लिंक्डइन, ऑल्सो हर एक जो हमारा डोमेन है फॉर आर्टिकलशिप और जॉब एज वेल, हमें उसका भी थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिला। ऊपर ऊपर से मतलब एक समझ आया कि उसमें होता क्या है फील्ड में। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ही नई फील्ड है, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता लगा, और सारी जो जो फील्ड्स हैं कॉमन, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी, उन सब के बारे में भी पता लगा। एज अ बोनस फाइनेंस के बारे में भी पता चला, जो कि पहले नहीं था शेड्यूल्ड उसमें, बट बाद में बोनस की तरह हमें मिला। या। सो दैट सो वाज बस देयर। यहाँ पर रोक कर मैं बताना चाहूंगी कि हमने एक सेशन करा था स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे, तो भव्य उसकी बात कर रहे हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट द करियर प्रोस्पेक्ट्स इन दीज फील्ड्स। हाँ जी भव्य।
यस मैम, सो एक वो एकदम नई फील्ड हो गई वो, क्योंकि फिर भी इंटरनल ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में तो लोग फिर भी बात कर ही लेते हैं, बट हम्म फाइनेंस के बारे में इतनी बात नहीं है एट दिस लेवल, एट हम्म आर्टिकलशिप लेवल। सो एक वो नई फील्ड के बारे में पता लगा। ऑल्सो ऑडिट मास्टर क्लास तो एकदम फ्लैगशिप कोर्स है तो है, उसमें एकदम डिटेल्ड नॉलेज है हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो भी ऑडिट में थ्योरी में पढ़ा, ऐसा लगता है कि वो थ्योरी में बस कि वो बुक में ही रह जाएगा, बट वो एक्चुअली अप्लाई भी होता है प्रैक्टिकली, ये देखने को मिला ऑडिट मास्टर क्लास में। एक्सेल के फंक्शंस काफी सारे सीखने को मिल गए, जो भी अभी यूज में आने ही वाले हैं, आर्टिकलशिप में बेसिक फंक्शंस जो भी होते हैं एटलीस्ट वो सब पता लगे, वी लुकअप कैसे यूज करना है, पिवट टेबल्स का क्या यूज है, वो सब पता लगा। ऑल्सो डिटेल्स असर्शन चेकिंग, कि हमें कैसे चेक करना है कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड अदर बैलेंस शीट आइटम्स, P&L आइटम्स, वो कैसे डिटेल में चेक करनी है जाके। मतलब वही सारी चीजें जो ऑडिट में हम सुनते हैं कि यार असर्शंस होती हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, पर वो एक्चुअली में हमें पता नहीं होता कि भाई यार उसको अप्लाई कैसे करना है। ये सीख तो लिया, एग्जैक्टली, एक समझ तो एग्जैक्टली। लिया कॉन्सेप्ट, पर मैं इसे यस मैम। काम में कैसे यूज करूंगा। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आवर गोल विद थिंकिंग ब्रिज, कि यही यार कि प्रैक्टिकल चीजें करने में और उनका नॉलेज होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस मैम। हम राइट। असर्शंस के बारे में तो इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं, हम्म बट वो एक वर्ड रह जाता है असर्शन, बस दिमाग में एक रट लिया वर्ड, तो वही वर्ड है, हमें पता ही नहीं एक्चुअली में वो करना क्या है उसके अंदर, वो अच्छे से समझ में आया। राइट राइट। तो बैच खत्म हुआ और अब जो है सिलसिला शुरू हुआ अप्लाई करना। तो यस रिजल्ट से मैम। पहले ही अप्लाई कर दिया था आर्टिकलशिप के लिए? यस मैम, रिजल्ट से पहले ही मैंने काफी सारे एचआरस को मेल भेजे, लिंक्डइन पे जो भी एम्प्लॉय डाल रहे थे कि रेफरल के लिए, मैंने हम्म उनको भी अप्रोच करा, न्यू हम्म कनेक्शंस बिल्ड करे। तो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, रिजल्ट से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इतने डाउट्स आते हैं भव्य कि मैम रिजल्ट तो आया नहीं है, पहले अप्लाई कर दे कि नहीं करें। तो भाई यस डेफिनेटली करना चाहिए। भव्य आप बताओ कि एट करना दिस, चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब रिजल्ट आ भी गया और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, तो आई वुड से डेफिनेटली करना चाहिए। एक हमें पता लग जाता है कि करना कैसे अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद जब एचआर का कॉल आ जाए तो उनसे कैसे बात करनी है, इंटरव्यू अगर आपका कंडक्ट हो जाए तो वो कैसे करना है। तो मेरा बीडीओ में मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था, कर तो मैंने टॉप 6 फर्म्स में था अप्लाई, हम्म मेरे को बीडीओ से पहले ही कॉल आ गया था रिजल्ट के, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था बीडीओ में, सो आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट इंटरव्यू, कि हम्म कैसे मेरे को फेस करना है इंटरव्यू में एचआर का, जब कॉल आएगा, जब मेरा पार्टनर के साथ इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, तो उनसे कैसे डील करना है। राइट। पर मैं यहाँ पर ना भव्य एक चीज ऐड करूंगी कि यूजुअली ना लोग बोलते हैं कि हाँ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर क्या करना है, दे आएंगे इंटरव्यू और पहला इंटरव्यू में जो मिस्टेक्स होगी ना उसको सीख कर हम अगली वाली में अप्लाई कर देंगे, अगले वाले इंटरव्यू। बट दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? सो मैम। जिनको यस नहीं मैम। पता मैं उनको बता दूं, भव्य ऑलरेडी 2 मॉक इंटरव्यूज दे चुका है बिफोर गिविंग हिज फर्स्ट इंटरव्यू। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? करेक्ट मैम, मैं पहले इंटरव्यू हो गया था, वो यूट्यूब पे भी है ऑलरेडी। हाँ, तो उसके बारे में बताओ भाई कि थोड़ा बहुत, कि इंटरव्यू जाने से पहले ये मत सोचो कि इंटरव्यू में ही जो है जाकर आप परफॉर्म करोगे, उससे पहले प्रिपेयर भी करना है। मैम, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा हम ऐसी अप्रोच नहीं रख सकते ना कि अगर इसमें नहीं हुआ तो दूसरी में चले जाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो कितनी लिमिटेड है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि चलो इसमें नहीं हुआ, एक बार इसको एज अ ट्रायल इंटरव्यू देंगे किसी फर्म में, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर हम एक्चुअल फर्म में ट्रायल इंटरव्यू देंगे तो हमारी फिर कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही उसमें, हम क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए एटलीस्ट एक इंटरव्यू में, तो चाहे वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड इंटरव्यू हो। एंड अगर लकीली आपका तो फर्स्ट इंटरव्यू ही चलो मतलब बिग 6 में था। यूजुअली जैसे वो यस लोग मैम, होते हैं ना कि ठीक है पहले स्मॉल फर्म में मीडियोकर दे में देते ट्राई हैं, करेंगे। हाँ मिड साइज हाँ, फर्म में। बट व्हाट इफ लाइक आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुई किसी बिग 4 के साथ है या फिर किसी बिग 10 के साथ है, तो वो तो यस मैम, अपॉर्चुनिटी गई ना अगर आपने वहां गड़बड़ कर दी तो। एग्जैक्टली मैम। तो मेरा पहले ही मॉक इंटरव्यू तो हो गया था, जो भी नर्वसनेस आनी चाहिए थी वो ऑलरेडी उस समय खत्म हो गई थी, क्योंकि पहले एक बार इंटरव्यू दे दिया था, जो भी हैंड शेक करते हैं, लेग शेक करती है, वॉइस क्रैक करती है बोलते वक्त, तो वो पहले ही निकल गया था एक बार इंटरव्यू देने के बाद। सेकेंड बारी जब इंटरव्यू दिया, वो परफेक्ट तो नहीं कह सकते, परफेक्ट तो हम दे भी नहीं सकते इंटरव्यू, बट स्टिल एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि ठीक है भाई, पहले भी इंटरव्यू दिया था, वो भी अच्छा गया था, तो अब फिर से दे सकते हैं हम इंटरव्यू, या अगर वो अच्छा नहीं भी गया था तो हमने उसमें से कुछ तो लर्निंग्स ली होंगी, वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। अब हम बात करते हैं पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का, कि कैसे इंटरव्यू हुआ। यूजुअली बिग 4 का जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, मैं काफी बार बता चुकी हूँ बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। पूरा प्रोसेस तो बताओ, मैम, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, कितने राउंड्स हुए?
मेरा ऐसा जो सेट रूल मैंने भी सुना है, मेरा वो नहीं था। मेरा एज ए एक्सेप्शन आप कह सकते हो कि था, मेरे जैसे वीडियो में हुआ था। सो आई फर्स्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर एंड ही डायरेक्टली scheduled an interview for me that was directly with a partner. Okay. तो वीडियो में मेरा डायरेक्ट पार्टनर लेवल इंटरव्यू हुआ. दैट वाज अ वेरी बेसिक इंटरव्यू टू जज माय, लेट्स से, communication skills and also to see if I would be able to join at my earliest. He was asking that from where am I doing my BCom, and will I be needing leaves for my exams. So all that questions were asked in that interview. It was a very short interview. Then when I got my result, I got a call from that video HR, and then he said that I have been my interview was successful and I have been shortlisted. So I can join that firm from like 3 days after that only. He said हम्म that I can join from 12th itself. विद इन But 3 days मतलब ज्वाइन yes, कर लो. हम्म बट मेरा ओसी कंप्लीट हुआ नहीं था, तो बिना उसके तो वैसे भी नहीं कर सकते ज्वाइन. अब हम्म अलाउड ही नहीं है टेक्निकली. सो या देन आई ऑल्सो, मेरे मन में ये भी था कि एक बार बिग फोर में भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एस्पिरेशन और बिग फोर के लिए ही था. इट्स नॉट हम्म दैट कि आई एम नॉट हैप्पी विद वीडियो और समथिंग, कि मेरा वीडियो में भी अगर होता तो इट्स ओके, बट व्हाई नॉट, वी इफ वी हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द टाइम. मेरे पास 20-25 दिन का टाइम था. सो आई थॉट कि मैं बिग फोर में अप्लाई करूंगा और उसके लिए पहले वेट करूंगा. सो मेरा रिजल्ट आया था, सो आई sat down, I updated my resume, result awaited to pass. हम्म Then I started mailing my resume. Also, I bought a LinkedIn free trial for 1 month. So then I saw a post of a EY senior consultant. हम्म It was a post for hiring articles. So I directly messaged him via LinkedIn Premium. In-mail message I sent to him, and then within 30 to 45 minutes, I received a call from EY. क्या So बात है. it might be because my message was at the top only in his हम्म messages box. So then that was my first round kind of in EY. So did the LinkedIn outreach template that we had given you, did it help? डेफिनेटली मैम, तो जब हमें किसी को मैसेज भेजना है तो एक उसका सेट फॉर्मेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट अपना रिज्यूमे ही भेज दे रहे हैं, हेलो उसमें साथ सर में कुछ प्लीज गिव मी जॉब. हेयर्स माय रेज्यूमे, ऐसे नहीं भेजना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें हमें एक स्ट्रक्चर वे में अपना कवर लेटर ऐसा मैसेज भेजना चाहिए सबसे पहले. सो हम्म देन आई मेल माय मैसेज माय रिज्यूमे एज वेल. So I received a call. That was first round of EY. In that he asked me which domain I am preferred, which is my preferred domain. So I said that I am inclined towards statutory audit, but it's not that कि मुझे stat audit ही चाहिए. So that call was a vacancy of internal audit. oh So then he started explaining me what's the difference between internal audit and stat audit. So then मैंने वो सब सुना, हमारी अच्छी बात हुई. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा. मेरा क्योंकि मेन एम था कि मेरे को कंपनी स्पेसिफिक था, मेरा मेरा हम्म डोमेन स्पेसिफिक एम नहीं था. दोनों अलग अलग चीज है. अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमें हमारी प्रेफर्ड कंपनी मिले और उसमें ही प्रेफर्ड डोमेन मिले. इतना या भी चूजी होना मेरे हिसाब से सही नहीं है. सो या तो हमें एक प्रेफर्ड डोमेन अगर हो तो वो बेस्ट है. फिर वी शुड एम फॉर टॉप 50 कंपनीज. या बट अगर हमारा एक प्रेफर्ड कंपनी ही है, सो आई थिंक दैट स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट आर बोथ काइंड ऑफ रेप्यूटेबल एट द सेम प्लेस. तो इतना भी कोई. डेफिनेटली. Yes, so I just accepted that I would be happy to work in internal audit as well. So then my second round was scheduled on that day itself, on the day of result. ओह. So सेलिब्रेट करें कि इंटरव्यू दें? नहीं, पहले इंटरव्यू दिया फिर सेलिब्रेट किया. अच्छा, कैसा गया तो फिर इंटरव्यू? इसके वो बारे में बताओ. इंटरव्यू भी अच्छा गया. वो भी एक सीनियर कंसल्टेंट का ही था, हम्म, उनके मतलब कोलीग होंगे. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. In that he asked about me, introduce yourself, and basic questions like why EY, where do you see yourself in 5 years, basic questions like that. And also he asked me 2 to 3 technical questions related to auditing, so I was हम्म. able to answer them. कुछ बताओ टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, थोड़ा ऑडियंस को पता चले कि अच्छा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल मार्केट he में. asked he asked me about confirmations. The कॉन्फर्मेशन. question was how many types of confirmations are there,
So I told him that there are two types of confirmation, internal confirmation and external confirmation. Then he asked how many types of external confirmation are there. Then I said that positive and negative worded. So he asked me the meaning of them also. I was हम्म able to answer that as well. तो उसके बाद वो भी शॉर्ट इंटरव्यू था, अबाउट 30 minutes का. हम्म So that was there, and after two days I received a call from them that my interview was successful and I have been shortlisted. क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंगली आपने पूरी स्टोरी, अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था एज वेल एज योर सीए जर्नी बहुत ही अच्छे से बताई। अब थोड़ा सा टिप्स के बारे में बात करते हैं। अभी जो आपके पियर्स हैं, मतलब जो अभी आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके जूनियर्स कभी फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे, तो उनको आप क्या टिप्स शेयर करना चाहोगे उनके साथ कि इंटरव्यू ऐसे प्रिपेयर करो, या फिर आप जो ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी सीए जर्नी में। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस जो ऑनलाइन हो रही हैं वो थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि मेरा भी बीच बीच में थोड़ा ध्यान भटक जाता था. अब आफ्टर आफ्टर गिविंग माई एग्जाम, जब वो बीच में खाली पीरियड था, तब उसमें यही थॉट आता था कि अगर वो क्लासेस सही से ले ली होती तो आज शायद से सही रहता. आज हम्म ऐसे दिमाग में थॉट ना रहते. तो एक तो वो पॉइंट है कि क्लासेस एकदम सीरियसली लो, फोन वोन साइड में रख के एकदम जैसे क्लासरूम में हम क्लास लेते हैं. ऑल्सो register for ITOC within the period after giving your exams and when the result are declared, because वो हम्म एक मैंडेटरी थिंग है, या वो करनी है. अगर बाय चांस भगवान ना चाहे अगर कुछ नेगेटिव भी रहा रिजल्ट में, तो वो वेस्ट नहीं होगा हमारा, वो हमारा आगे भी यूज में ही रहेगा. ऑल्सो आप अगर हम रिजल्ट के बाद ITOC करेंगे तो 1 महीना तो उसमें ही चले जाएगा. हम्म ऑल्सो देर आर सर्टेन कंपनीज जो चाहते हैं कि आर्टिकल हमारा परसों से ही ज्वाइन कर ले, राइट। तो उसमें उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है. ऑल्सो जो हमारा बीच का टाइम है रिजल्ट और एग्जाम्स के बीच का, हम्म उसमें पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, फन करो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्जाम्स के टाइम, और स्पेशली जब बोथ ग्रुप देते हैं तो जब वो 16 दिन काटने पड़ते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. क्योंकि अब आप एग्जाम दे के आए तो आप रेस्ट करने का भी दिमाग को टाइम नहीं मिल पाता. हम्म उसमें यही टेंशन रहती है कि आगे का क्या है, आगे अगले पेपर का कैसे स्टार्ट करें, कैसे करें. तो वो रहता है उसमें, तो इसलिए पहले तो अच्छे से रिलैक्स कर लो. ऑल्सो ITOC के बैच के लिए पहले ही रजिस्टर कर लो, क्योंकि वो फिल भी जल्दी हो जाते हैं. ऑल्सो अपना सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा काम करना आपको लगता है कि नेसेसरी है, लाइक इफ यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, इन स्पीकिंग विद समवन, ऑल्सो एज अ कॉन्फिडेंस एज अ होल, तो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम इस टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद तो डायरेक्ट HRs के कॉल आने शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो तब वो हम्म टाइम नहीं मिलेगा. ऑल्सो अगर हमें पहली बात तो रिज्यूमे अपना उसके बीच में ही बना लो. आई हैव माई सर्टेन फ्रेंड्स इन OC विच आर बिल्डिंग देयर रिज्यूमे नाउ. तो अगर वो अब रिज्यूमे बनाएंगे उसके ऊपर, फिर उन्हें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए ही होगी, क्योंकि हम्म ऐसा तो है नहीं पहली बारी में एकदम परफेक्ट रिज्यूमे बन जाएगा. या तो फिर उसे कब वो आगे उसे भेजना शुरू करेंगे, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है. राइट। अपने जो हमने टेक्निकल स्किल्स हैं हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, लाइक ऑन एक्सेल. इफ यू आर विलिंग टू वर्क इन ऑडिट और एनी अदर डिपार्टमेंट, देन वी कैन ऑल्सो चेक आवर थिंकिंग ब्रिज कोर्सेज. इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल. यू। यस, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि अगर हमें वो एक रिज्यूमे के ऊपर भी एक तो हमारा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होगी, हम्म ऑल्सो जब हम एक्चुअली वर्क भी करेंगे तब भी वो काम आएगा ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमें स्पून फीड करा जाएगा, सीनियर हमें सारी चीज बताएगा ही आके कि ऐसे 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 करो. थोड़ा तो हमें खुद का ही ब्रेन यूज करना होगा. अगर हमें पहले से आता होगा देन वी वुड बी अप्रिशिएटेड ऑल्सो, ऐसा मैं होप करता हूँ. नहीं, डेफिनेटली। अभी आप लास्ट में शारिक का अगर आपने देखा हो इंटरव्यू, ही इज अ क्वालिफाइड सीए, सो ही आल्सो डिड दिस, एंड देन ही वाज सेइंग दैट obviously seniors are not always there to help you out, so हम्म, whatever knowledge we gain from here, that is definitely going to help us in while attending the clients as well. and in fact उन्होंने मुझे बताया, मैं तो कभी कभी आज भी जो है मतलब आकर खोल के कोई देख लेता हूँ कि मेरे को ये, अगर मेरे को इशू आया है तो ये वाला कैसे होगा. so that's pretty, I mean, काफी एनरिचिंग जो है वो लगता है कि हाँ यार, कोई ऐसी चीज है जो मुझे डेफिनेटली काम में भी हेल्प आने ही वाली है. यस मैम. और लास्टली लिंक्डइन का तो सबसे अच्छे से यूज करो, क्योंकि इस टाइम लिंक्डइन सबसे ज्यादा काम आएगा.
अगर हम इस टाइम अपना इंस्टाग्राम कट 2 आवर्स से कट करके हाफ एन आवर पे करके बाकी 1.5 आवर हम इंस्टाग्राम को अगर हम अपना लिंक्डइन को देंगे तो डेफिनेटली हमें काम आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर पोस्टेड ऑन लिंक्डइन। Yeah. सो हम वहां से देख सकते हैं Big 4, Big 10 एंड ऑल्सो मीडियोकर फर्म्स ऑल्सो पोस्ट देयर अपॉर्चुनिटीज देयर। So Yeah. definitely LinkedIn is a gem for searching jobs and articleships. ये तो कब से बोल रहे हैं हम कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ अच्छे से एंड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम देयर। Yes, सो ma'am. anything else that you would Okay. like to share, any lesson, any life lesson that you want to share? हम कि हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बोथ ग्रुप देना एक बारी में। कि ऑल्सो मेरे पास टाइम भी कम था रिवीजन के लिए, ओनली 1 month वाज देयर। सो अगर हम उस टाइम फ्रस्ट्रेट होके ये सोचे कि हम अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, वो गलती तो सबसे पहले कभी मत करना अटेम्प्ट स्किप करने की, क्योंकि वो एक बारी ना फिर हैबिट ही बन जाती है। Right. अगर हमें आज 1 महीना बचा है हमारे अटेम्प्ट के लिए, तो आगे भी तो ऐसा टाइम आएगा ही जब 1 महीना बचा होगा अटेम्प्ट के लिए। तब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उस टाइम हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे? तो अपना बेस्ट दे सकते हैं और फिर बाकी होप फॉर द बेस्ट तो कर ही सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच भव्या, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। एक अलग सा कनेक्शन तो डेफिनेटली अपना है ही थ्रू लाइव आईपीएम, थ्रू थिंकिंग ब्रिज, बट अदर देन दैट यू ट्रूली आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। सो थैंक यू थैंक सो यू सो मच मैम। मच फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग थिंकिंग ब्रिज इन वॉट एवर वे। जिस तरीके आप मतलब शेयर ही कर देते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, एंड जेन्युइन फीडबैक आपने शेयर किया वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।